Very good morning to you all students. In our last class, we were discussing about the chapter 4 of civics, that is electoral politics. And we have started that why do we need election? What is the importance of election? And in that topic, why do we need election? We discussed that elections are essential in any democracy because we don't have any other way to elect our representative or the person who will govern us. So we don't have any other way. That's why election is better way to elect our representative on our behalf who used to rule our nation or country. Then second topic we have discussed in last class, what makes elections democratic. So one person, one vote, one value means universal adult franchise in considered in election made elections democracy, plus lots of choices candidate choices we are having. So this also makes election we can say democratic or proper. Then third thing is that the person whom we elect, whom we preferred, get elected and takes all the decision. This thing also makes election democratic in any nation. Then next topic we have discussed, is it good to have political competition? In short run maybe it is not good, but in long run yes, it is good to have political competition. If political competitions will be there, then the elected representative will serve more and more to general public. Though the ultimate motive of a democratic nation or a country is to serve the nation, to serve its citizens, and we used to elect our representative so that they can serve us in smooth running of society, in smooth running of nation. So if electoral competition will be there, political competition will be there, then the political leaders will try to serve more and more to the people so that they can remain in power. Understand beta? And today we are going to start with what is our system of election. ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्शन हमारी कंट्री में या किसी और कंट्री में जो है करवाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, पूरा इलेक्शन जो सिस्टम है वो कंप्लीट कैसे होता है. दीज स्टेप्स वी आर गोइंग टू सी. ठीक है. So basically many type of elections are there at different level, but two major election for Lok Sabha and Vidhan Sabha is there. Lok Sabha at central level, from that we used to elect our MPs, member of parliament. Lok Sabha means parliament. At state level it is legislative assembly. Vidhan Sabha, from them we used to elect our MLAs, member of legislative election. So this kind, further there is further elections are there for municipalities, for panchayat system, village level. तो different elections are there. तो सबसे पहले बेटा क्या होता है, फॉर इलेक्शन our whole country. अगर सेंट्रल लेवल इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है तो पूरी कंट्री, अगर स्टेट लेवल इलेक्शन है तो पूरा स्टेट को क्या किया जाता है, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो सबसे पहले इलेक्शन के लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती है कि टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पूरे देश में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. मतलब एरिया वाइज. जैसे आपको यूं नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो वार्ड इलेक्शंस होते हैं. वार्ड इलेक्शन जैसे मतलब अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए थे वार्ड इलेक्शन, जिसमें अपन क्या करते हैं, अपना जैसे सपोज अब हम लोग जहाँ सुमेरपुर में रह रहे हैं या शिवगंज में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, तो वो पूरा एरिया पे छोटे छोटे वार्ड्स में, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, मतलब एरिया डिवाइड हो जाता है. और हम जो है अपने वोट से जो है पर्टिकुलर हमारे वोट से जो खड़ा हो रहा है वार्ड से, उसी को ही इलेक्ट करते, उसी को ही वोटिंग, उसी के लिए वोटिंग करते हैं. तो उसी तरह से जैसे छोटे लेवल पे या अपन कह सकते हैं नगर पालिका इलेक्शंस के लिए वार्ड डिवाइड होते हैं, उसी तरह से सेंट्रल लेवल इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोली जाती है बेटा. तो क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट या अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट कितना बड़ा है, कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उस स्टेट में ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है. पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको गवर्न करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं, और ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े होने के लिए जो है एरियाज को ज़्यादा डिवाइड किया जाता है, प्लस साइज भी मैटर करती है. तो एरिया वाइज पूरी कंट्री को डिवाइड कर देना, ठीक है. और बेसिकली इसमें पॉपुलेशन को ध्यान रखा जाता है. सपोज एग्जांपल ले लो 20,000, तो हर 20,000 एक जगह से लेके जहां तक 20,000 पॉपुलेशन रह रही है
वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर फर्दर जो 20,000 पॉपुलेशन रह रही है वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस तरीके से पूरे देश को बांटा जाता है। और सेंट्रल लेवल पे टोटल 5 अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं 8 से कि लोकसभा में जो है कितनी सीट्स होती है, 545 मेंबर्स या 543 पीपल्स इलेक्ट होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कितने होते हैं, 543 या 545 होते हैं। तो ये क्या है, इतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इतनी जगह से ही अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, हर एरिया में से एक बंदा इलेक्ट होकर आता है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से या किसी भी हिसाब से कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बांट देना इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इलेक्शन का, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करना कि किस स्टेट से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी और उस हिसाब से कैंडिडेट खड़ा होता है। ठीक है, रीड कर देती हूँ फटाफट मैं आपके लिए। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा, जो अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था ना बेटा, लोकदल वाला 90s MLA जीत के आए थे। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर, क्या हर इंसान, मतलब अगर 543 सीट्स हैं सपोज सेंट्रल लेवल पे, तो क्या 543 वोट्स हम डालते हैं क्या? नहीं, हम वोट अपने एरिया से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही डालते हैं बेटा। हम 543 के लिए नहीं, वोट तो हम एक ही देते हैं। हमारे एरिया से जितने कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उस कैंडिडेट में से एक को ही इलेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से जो फर्स्ट एग्जांपल अपन ने पढ़ा उसमें 90 MLA जो है लोक दल के विन किए, 90 सीट्स लोक दल ने विन की। तो क्या 90 के लिए सब लोगों ने वोट किया था? नहीं, सब लोगों ने अपने अपने एरिया के लोक दल के कैंडिडेट को किया था। You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of election. These areas are called electoral constituencies. The voter who live in an area elect one representative. जो वोटर जिस एरिया में रहता है वो उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मैंने बताया है कि सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्ट होकर आता है कैंडिडेट वो पार्लियामेंट का मेंबर बनता है, तो ही इज कॉल्ड एज MP। One of the feature of democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have roughly equal population. क्योंकि हर वोट की इक्वल वैल्यू होती है, हर कैंडिडेट इक्वल होता है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इक्वलिटी पे बेस्ड है, ताकि कोई किसी को क्लेम नहीं कर सके अनइक्वलिटी के लिए। इसलिए रफली जो है पॉपुलेशन सेम ही रखी जाती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एज मेंबर ऑफ, ये मैंने बताया स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है उसको MLA बोला जाता है। Each parliamentary constituency has within its several assembly constituencies. The same principle apply for पंचायत। उसी तरह से पंचायत सिस्टम में भी अलग अलग जो है ग्राम होते हैं, पंचायत होती है, और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन जो नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं उसमें वार्ड्स होते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे उनको वार्ड्स बोला जाता है, एरिया वाइज डिवाइड होता है। Each ward elects one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituency represents one seat in the assembly. When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that the candidate of Lok Dal won in 60 assembly constituencies in the state, and thus Lok Dal and 60 MLAs in the। तो इसका मतलब क्या है, जब अपन ने आगे फर्स्ट एग्जांपल पे पढ़ा कि लोक दल ने 60 सीट्स अकेले जीती, इट मीन्स लोक दल के 60 कैंडिडेट्स विन करके आए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है अपना इलेक्शन सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करना कि किस स्टेट में किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। नाउ पेज नंबर 62 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेकंड स्टेप होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व करना। बेटा ये रीड नहीं कर रही, मैं रफली आपको बता देती हूँ, आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि जो हमने बोला, हम क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में इक्वल राइट है कि कोई भी पर्सन जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए वो वोट कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम इलेक्शन लड़ना चाहें एज ए कैंडिडेट तो ये हमको डेमोक्रेसी में राइट है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं।
बट बेटा इक्वलिटी तो है डेमोक्रेसी में, पर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बेटा, उनको ये डर था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कि आगे जाके मे बी जो हाई कास्ट के लोग हैं, जो रिच पीपल्स हैं, वो हो सकता है डोमिनेट करे, उनको आगे ना आने दे, और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो वुमेन्स हैं, उनको जो है पॉलिटिकल लेवल पे आगे न बढ़ने दें, उनको इक्वलिटी नहीं दे, एज ए कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ने दे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन इक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया था, पॉलिटिकली भी वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशंस दिए थे कि कुछ उसमें क्या होता है बेटा, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो जाती है, देश बढ़ जाता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब उस 543 में मतलब पूरे पूरे जो कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है ना, उस टोटल पॉपुलेशन में ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटीज है, उनकी पॉपुलेशन देखी जाती है। पॉपुलेशन देखने के बाद, परसेंटेज निकालने के बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रखी जाती है। जैसे कि 2012 के हमारे पास इस बुक में स्टेटिस्टिक्स दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू 2012 जो लोकसभा है, लोकसभा सेंट्रल लेवल पे 84 सीट्स रिजर्व की गई थी शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 सीट्स रिजर्व की गई थी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ताकि इसमें क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड हो जाती है कि इस जगह से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इस एरिया से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो शेड्यूल कास्ट का ही होगा या शेड्यूल ट्राइब्स का होगा। फिर जितनी भी पार्टीज हैं वो अपनी पार्टी में से उसी कैंडिडेट को टिकट कर देती है जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड करता है। मतलब हर पार्टी का जो भी कैंडिडेट उस पर्टिकुलर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा ना, वो शेड्यूल कास्ट का ही होगा या शेड्यूल ट्राइब का ही होगा। मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई विन करके आएगा तो वो रिजर्व सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ही विन करके आएगा। तो इसको बोला जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए शुरू में रिजर्व रखी गई, धीरे धीरे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई, और फर्दर वुमेन्स के लिए भी जो है लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीट रिजर्व कर रखी है, ताकि वुमेन्स की भी जो पोजीशन है वो सोसाइटी में ऊपर आ सके और इक्वलिटी मिल सके एज कंपेयर टू मैन वुमेन्स को। तो वुमेन्स के लिए भी जो है पॉलिटिकल लेवल पे 1/3 सीट रिजर्व रखी गई है कि इस 1/3 एरिया में या इस पर्टिकुलर एरिया में जो है अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो वुमेन होगी, तो हर पार्टी की वुमेन ही उस एरिया से लड़ेगी। तो इस तरीके से इसे बोला जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ अवर इलेक्शन प्रोसीजर और इलेक्शन सिस्टम। चाहे इसको इलेक्शन प्रोसीजर बोलो चाहे इलेक्शन सिस्टम बोलो। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कौन सी है। सेकंड स्टेप, रिजर्व रखी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड वुमेन्स। थर्ड स्टेप है वोटर स्लिप्स। प्लस ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सामने मैप दे रखा है, पेज 63 है मेरे बुक का। ये मैप है बेटा, ये वाला मैप है। इस मैप को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से रिजर्व रखी गई है। ऊपर आप ये देखो, यहाँ पे दे रखा है टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे रखी है वाइट से, ठीक है, ये सारी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब इसमें से जो जनरल कैंडिडेट है उनकी 412, ये 2012 की स्टैटिस्टिक्स अपने पास अवेलेबल है। 412 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये वाइट वाली, यहाँ पे सारे जनरल सिटीजन्स खड़े होंगे, जहाँ पे कोई कलर नहीं है, वो सारे जनरल लोग खड़े होंगे, कोई ओबीसी वगैरह नहीं खड़ा हो सकता। सेकंड, ये जो रेड वाला है ये है एससीज के लिए। ये जो रेड एरिया है यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट खड़ा होगा। जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब खड़ा होगा। तो इस तरीके से इनको बोला जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये मैप रीड करना आपको तो समझ में आएगा। अच्छा, अब मैं थर्ड स्टेप आपको बता रही थी कि सब कुछ हो जाता है, उसके बाद बनती है वोटर लिस्ट। एक्चुअल में वोटर लिस्ट सबसे पहले बनती है। ये बोला थर्ड स्टेप दिया गया है, पर लॉजिकली देखा जाए ना तो बेटा जैसे ही इलेक्शन आने वाले अगले साल, तो एक साल पहले से ही जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है एक तरह से फॉर्म में आ जाते हैं, घर घर जाके सर्वे करते हैं। वोटर लिस्ट मतलब कौन से जो अपने जो कंट्री में जो है वोटिंग की एज क्या है बेटा, 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के या उससे अबव के लोग जो है वोट कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, देयर इकोनॉमिक लेवल, चाहे रिच हो, पुअर हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई भी कास्ट के हो, 18 ईयर या 18 ईयर के सब लोग अबव के जो सब लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। तो उनकी लिस्ट बनती है। क्यों बनती है? हर साल। क्यों? हर साल नहीं, हर 5 साल में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, हर 5 साल बाद उससे पहले वोटर लिस्ट बनती है, जिसमें ये देखा जाता है कि कुछ नए बच्चे हैं जो 18 ईयर क्रॉस कर गए या 18 ईयर की एज में
पहुंच गए उनको उस वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है बेटा, तो उनको उस लिस्ट से रिमूव किया जाता है। तो इस लिस्ट को अप टू डेट रखने के लिए जो है हर 5 साल बाद वोटर लिस्ट वापस से बनती है, नए नेम्स ऐड किए जाते हैं, जो रिमूव करने होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ इलेक्शंस फॉर डूइंग इलेक्शंस। फोर्थ स्टेप है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई, वोटर्स लिस्ट बन गई, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई। अब इलेक्शन लड़ेगा कौन, कौन कौन से कैंडिडेट्स लड़ेंगे। ठीक है, तो फिर कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं। जिस तरह से वोटिंग करने के लिए 18 साल की उम्र होती है, उसी तरह से एज ए कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स एज होना जरूरी है। फिर चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी बंदा हो, 25 ईयर और उससे अबव का बंदा एज ए कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है और पॉलिटिकल लेवल पर आ सकता है। ठीक है, बट कुछ शर्तें इसमें ये होती है कि वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल कनेक्शंस नहीं होने चाहिए। अच्छा, पहले टाइम में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता था, अब जो है गवर्नमेंट ने ये सिस्टम कर दिया है कि उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा जनरल पब्लिक को, और उस बिहाव पर जो है उसको दिया जाता है। तो फिर अब उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी डिक्लेयर करनी होती है, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज जो उसकी पूंजी है, प्रॉपर्टीज है, प्लस उसने जो लोन ले रखे हैं, ये सारी डिक्लेरेशन पहले ऐसे कोई भी फिल कर देता था। अब जो है कैंडिडेट्स के लिए ये कंपलसरी हो गया है कि वो सारी अपनी डिटेल सार्वजनिक करें, मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो वो पहले इलेक्शन कमीशन को देते हैं और इलेक्शन कमीशन फिर वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है उस बंदे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसने कितने लोन रखे हैं, इसकी लाइबिलिटी मीन्स उसके ऊपर दायित्व कितने है, उसने लोन कितने ले रखे हैं, प्लस उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल कनेक्शन है, तो वो सारा लीगली पब्लिकली किया जाता है ताकि पब्लिक डिसाइड कर सके अपने माइंड में कि वो कैंडिडेट उनके लिए सही है या नहीं है, प्रॉपर जजमेंट कर सके। तो इसको कहते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। ये भी आप रीड कर लेना। अब इधर एक एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखा है पेज 64 पे राइट हैंड साइड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। बेटा एज ए लीडर इलेक्ट होने के लिए पॉलिटिकल लेवल पे जाने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पब्लिक करनी पड़ती है ताकि पब्लिक डिसाइड कर सके, ये पब्लिक के लिए है। बट ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जैसे डॉक्टर बनने के लिए या अदर प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अपने को क्वालिफिकेशन चाहिए, बट एज ए पॉलिटिशियन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक अनएजुकेटेड बंदा भी जो है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे क्रिकेटर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्रिकेट खेलना आना चाहिए। उसी तरह से जो है इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि एमएलए एमपी बनने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने जाएंगे तो जो 90% लोग हैं, 90% यहाँ दिया रखा है, पर अब जो है काफ़ी जनरेशन अपनी एजुकेटेड हो चुकी है, तो मैक्सिमम अपन कह सकते हैं पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो स्टिल अनएजुकेटेड है। तो जो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन स्टोन है अपना, इक्वालिटी, अगर हम एजुकेशन देखने जाएंगे तो हम इक्वालिटी को जो है हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग एजुकेटेड ही नहीं है, तो वो एज ए कैंडिडेट खड़े ही नहीं हो सकेंगे, तो एक तरह से हम उनसे राइट छीन रहे हैं। तो जो है पॉलिटिशियन जो है वो लोगों को समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है बेटा। ठीक है, इसको भी रीड करना। फर्दर अपना नेक्स्ट स्टेप है इलेक्शन कैंपेन। कैंडिडेट्स डिसाइड हो गए, सब कुछ डिसाइड होगा, अब शुरू होती है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग बोलते प्रचार। प्रचार जो है इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले से ही लॉजिकली स्टार्ट होता है, कैंपेनिंग शुरू होती है। इस कैंपेनिंग के दौरान जो है अलग अलग कैंडिडेट्स जो अलग अलग पार्टीज के हैं अपने विचार पब्लिक के आगे रखते हैं कि अगर वो जीत गए तो वो जनरल पब्लिक के लिए क्या करेंगे, और उस बेसिस पे जो है हम लोग उस प्रचार के बेसिस पे लोगों को समझते हैं और जो है कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं। और इस कैंपेनिंग पीरियड के दौरान जो हमारी अखबारें, हमारे न्यूज़पेपर्स, जो टेलीविजन है, न्यूज़ है, टोटली जो है इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल से, न्यूज़ से भरे हुए होते हैं ताकि जनरल पब्लिक को हर तरीके की न्यूज़ पहुंचा सके और फर्दर जो है लोग डिसाइड कर सकें। तो इसको भी रीड करना। प्लस कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं पेज 66 पे राइट हैंड साइड पे कि अलग अलग जो है टाइम पीरियड में अलग अलग इलेक्शंस के दौरान अलग अलग पार्टी ने क्या क्या नारे देके, क्या क्या लोगों को अट्रैक्शन देके कि अगर वो जीत गए तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने किन चीज़ों को पिन पॉइंट किया, किन समस्याओं को जो है उन्होंने क्या क्या हाईलाइट किया उस पीरियड के दौरान कि अगर हम जीत गए तो इन समस्याओं को हम दूर करेंगे। तो
अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें 1971 का इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे रखा है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी पार्टी जीत गई तो वो गरीबी को हटाएंगे। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी जिससे कि गरीबी हट जाए देश से, ठीक है, और इस बेसिस पे वो जीते थे। नेक्स्ट टाइम 1977 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जनता पार्टी ने नारा दिया था सेव डेमोक्रेसी, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी पीरियड के दौरान जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में जो जनरल पब्लिक से उनके राइट्स छीन लिए गए थे, तो अब जो है 1977 में जब दोबारा इलेक्शन हुए ना बेटा, तो उस दौरान जो है जनता पार्टी ने नारा दिया सेव डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को सेव करेंगे, लोगों के अधिकारों को सेव करेंगे। फर्दर 1977 में ही जो है लेफ्ट फ्रंट ने नारा दिया था लैंड टू द टिलर, किसानों को जमीन दिलवाएंगे, ठीक है। वहीं 1983 में तेलुगु पार्टी ने जो है कि एनटी रामाराव ने नारा दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु का जो आंध्र प्रदेश में सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ को पिन पॉइंट करके विन करने की कोशिश की। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, प्रचार के दौरान अलग अलग पार्टीज अपने मुद्दों को लोगों के सामने रखती है, जिसके बेसिस पे जनरल पब्लिक उनको वोट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ मैं आपको रीड करूंगी, पेज 66 पे। इन अ डेमोक्रेसी इट इज बेस्ट टू लिव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेनिंग द दे वांट, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन की पॉलिटिकल पार्टीज, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए कि जिस तरीके से वो इलेक्शन लड़ना, कैंपेनिंग करना चाहते, प्रचार करना चाहते हैं, वो करे, ताकि लोगों के सामने सच्चाई है। बट इट इज समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू ensure that every political parties and candidate gets a fair, पर at the same time कभी कभी जो है इस कैंपेनिंग पे थोड़ी पकड़, थोड़ी लगाम लगाना भी जरूरी है, ताकि उसको प्रचार को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से जो है जो कह सकते पावरफुल लोग यूज करके जो है स्मॉल पार्टीज को दबाने की कोशिश न करे। अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन। हमारे जो इलेक्शन लॉज हैं, लॉज ये क्या है, लॉज हैं, लॉज के हिसाब से कोई भी पार्टी या कैंडिडेट किसी को रिश्वत देके या डरा के किसी भी वोटर से वोट नहीं डलवा सकता है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ रिलीजन का, धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं मांगेगा, वो इलीगल अगेंस्ट द लॉ ऑफ इलेक्शन माना जाएगा। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट करता है तो उससे टिकट छीन लिया जाता है, उसको इलेक्शन में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, चाहे देखो अभी जैसे सपोज बीजेपी पावर में है, नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद सपोज इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जब तक इलेक्शन नहीं होते, नई सरकार चुनकर नहीं आती, तब तक वही चल रही है सरकार, इलेक्शन हो रहे हैं तो भी। तो जब इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, तो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जो है ये जो सरकार पावर में है ना, उस पार्टी जो पावर में है उससे भी अधिकार छीन लिए जाते हैं कि वो बंदा जो है नेक्स्ट इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें जीतने के लिए जो प्रेजेंट जो उसकी गवर्नमेंट रिसोर्सेज है उसको यूज नहीं कर सकता, चाहे वो खुद जो पार्टी पावर में है, चाहे जो पावर में नहीं है। मतलब गवर्नमेंट पोजीशन पे आने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे जो गवर्नमेंट पावर में चल रही है, चाहे जो पावर में नहीं है, कोई भी है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता। गवर्नमेंट व्हीकल्स को, जो हमारे पीएम है वो नेक्स्ट इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं, तो वो अपनी पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे बेटा, अपना पर्सनल फंड यूज करेंगे, सरकार के फंड से अपने सरकार के व्हीकल्स को प्रचार के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट द लॉ है। अंडरस्टैंड बेटा। और स्पेंड मोर देन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर देन ₹25 lakhs इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लोकसभा इलेक्शन में एक लिमिट है कि 25 लाख रुपए तक कैंपेनिंग में खर्च किए जा सकते हैं। और स्टेट, ये लोकसभा सेंट्रल लेवल पे 25 लाख और स्टेट लेवल पे 10 लाख। अगर कोई पार्टी, क्योंकि एक लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, लोग अंधाधुंध करोड़ों में पैसा खर्च करते जाएंगे, तो जो बेचारे स्मॉल पार्टीज हैं, जो लोग कैंडिडेट्स के पास इतना फंड नहीं है, तो वो अपना प्रचार कैसे करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है हार जाएंगे। तो एक लिमिटेशन लगा दी गई है कि इतने पैसों से ज़्यादा कैंपेनिंग पे खर्च नहीं किया जाएगा, वो अगेंस्ट द लॉ है। तो ऑल दीज आर लॉज फॉर सेविंग द स्मॉलर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके अलावा वो कैसे भी प्रचार कर सकते हैं। उसके अलावा एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स एक तरीका है कि इस तरीके से ही बिहेव करना है। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. अगर वो पर्सन जीत के भी आ जाता है, बाद में पता चलता है कि वो अगेंस्ट लॉ जीत के आया, तो
उसको जो है पावर से हटा दिया जाता है। इन एडिशन टू द लॉज ऑल द पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्री टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कैंपेनिंग। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, ऊपर वाले लॉज में भी क्वेश्चन बनेगा और ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इलेक्शन के दौरान। तो यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन। कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाके जो इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकता है उसको इलीगल जो है माना जाएगा, कोड के खिलाफ, कंडक्ट के खिलाफ माना जाएगा। यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज नहीं होंगे। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस मिनिस्टर शुड नॉट ले फाउंडेशन स्टोन। अच्छा, कोई ये भी मिनिस्टर चालाकी नहीं कर सकता जो सरकार पावर में है, जो सरकार चल रही है और वो देखती कि इलेक्शन आने वाले हैं तो हम लोगों को बहकाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट, नए नए सपने दिखाते हैं लोगों को। तो एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है सरकार शुरू नहीं कर सकती है। वो तभी करेगी जब वो नेक्स्ट टाइम विन होकर आएगी, लोगों को गलत तरीके से बहका नहीं सकती है। तो ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। अब अपन ने इलेक्शन कैंपेनिंग के स्टेप देख लिया, सब कुछ हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई, कैंडिडेट डिसाइड हो गए, ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई, वोटर्स लिस्ट बन गई, इलेक्शन का प्रचार हो गया, कैंपेनिंग हो गया। तो लास्ट डे आ जाता है पोलिंग और काउंटिंग डे। पोलिंग डे जिस दिन इलेक्शंस के लिए वोट डाले जाते हैं, काउंटिंग डे जब रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो लास्ट प्रोसीजर है, लास्ट स्टेप है हमारा इलेक्शन सिस्टम का, पोलिंग एंड काउंटिंग डे। पहले क्या था बेटा, एक बैलेट पेपर होता था जिसमें जो जो कैंडिडेट्स अपने एरिया से खड़े आ रहे हैं ना उनके सिंबल्स होते हैं, पार्टी सिंबल, जैसे कांग्रेस का हाथ का है, बीजेपी का कमल का है, इस तरह से अलग अलग पार्टीज के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो उन कैंडिडेट्स के नाम और वो किस सिंबल से, किस पार्टी से खड़े होते हैं वो दे रखा होता था। पहले जो होते थे ईवीएम मशीन्स नहीं होती थी, थंब इम्प्रेशन से, इंक से जो है थंब का जो है अपने को निशान लगाना होता था। बाद में वो बैलेट पेपर फोल्ड करके एक जो है बॉक्स होता था उसमें डाल दिया जाता था। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई है बेटा, ईवीएम्स आ गए हैं। ईवीएम से मतलब क्या है, अपन को बटन प्रेस करके जो है अपन वोट डालते हैं, फिर सारी वोटिंग हो जाती है, उनको मशीन्स को सील करके एक सिक्योर प्लेस पे ले जाया जाता है। फिर एक पर्टिकुलर डे डिसाइड होता है कि ये रिजल्ट डे है, उस रिजल्ट डे पे जो है काउंटिंग होती है और शाम तक रिजल्ट आ जाते हैं। जिसको मैक्सिमम वोट मिले हैं वो एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आ जाता है। तो इसको भी रीड करना बेटा, मेरे को नहीं लगता कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इलेक्शन प्रोसीजर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया पेज 68 पर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया में जो है इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है, क्या चीज बनाती है। आई थिंक स्टिल बेटा चैप्टर बाकी है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं बेटा। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक और प्लस चैलेंजेस, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का होमवर्क ये पूरा प्रोसीजर से रिलेटेड, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चंस बनता है बेटा, तो इसको ही कंप्लीट कर रहे हैं आज। इलेक्शन प्रोसीजर अपन ने अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये नोटबुक में करना। आज का होमवर्क यही है। शॉर्ट क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है ये आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है ये आ सकता है, प्लस एक बाय इलेक्शन मैंने आपको नहीं बताया। जनरल इलेक्शंस तो बेटा पूरे जो इलेक्शंस होते हैं वो, प्लस कभी कभी क्या होता है कोई क्रिमिनल या कोई फ्रॉड करता है ना नेता, तो उसको हटा दिया जाता है। कभी किसी नेता की डेथ हो गई और 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, वैसे तो सब जगह एक साथ इलेक्शन होते हैं, आगे पीछे ही होते हैं, बट कभी कभी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए इलेक्शन वापस करवाने पड़ते हैं ना बेटा, उस पोस्ट को फिल करने के लिए, वेकेंट सीट को फिल करने के लिए, तो उसे कहा जाता है बाय इलेक्शन। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ये पेज 60 पर लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है। समटाइम इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वेकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, दिस इज कॉल्ड एज बाय इलेक्शन। तो 1 मार्क्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, बाय इलेक्शंस क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है 1 मार्क्स के लिए, ये चीज़ें आप करोगे। उसके अलावा ये इलेक्शन प्रोसीजर करोगे, उसके अलावा ये जो लॉज हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये शॉर्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। तो ये सारा आप नोटबुक में कर लेना और बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में अपन आराम से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।